Ladies and gentlemen, I start and I kick it off with beautiful quote. Today's session, I would like to start with very beautiful quote. Successful life is not what you think it's a success. I think satisfied life is much better than successful life. Once you are satisfied, it is having more meaning as compared to your successful life. People are successful, they are making money, they have everything, but they are not satisfied. I would like to give you something related to your consciousness. You know, consciousness and awareness, it's a great blessing. You must acquire consciousness, you must acquire awareness and controlling and meta awareness. What is meta awareness and what is awareness and what is consciousness? You know, once you have consciousness, you have choice. I mean to say, you've got consciousness in your life, you know what is going on inside my body and what is the purpose of my life, what are my goals and what I want to achieve. So this consciousness and awareness, it is going to empower you to have choice. So the person who is spending like animal, he's not having choice, but the person who's having awareness and consciousness and meta consciousness, he's able to have choice. He can use his choice whether to fight or flee. So whether to stay in a situation or just run away. So this person who is having, you know, better consciousness, he's having good choice as compared to those people. They are, you know, they are unaware what is happening in with them. So once you get consciousness, once you get awareness, it's be empowering you. It will be empowering you with choices. So when you have choices, it gives you freedom. So with freedom, then you are able to plan for yourself. You can visualize things. You can, with your vision, you can create something because you've got choice, you've got freedom, you've got liberty, you have enough choice. So you make plans and your plans give you direction, and direction ultimately they are giving you outcome or better outcome. Hope you got today's point. So in today's lecture, you are going to learn a Midsummer Night Dream by William Shakespeare. It is one of comedy by William Shakespeare. Then we'll be discussing about Much Ado About Nothing. It means that you make hue and cry for nothing. There is nothing happen, but you are making hue and cry. Mostly people they make hue and cry. Then we'll see brain and its structures, some tips related to NLPs, NLP models we'll be discussing in today's lecture. So let's see basic information about this play. ये प्ले बेसिकली एक कॉमेडी है और मैंने आपको बताया कि मोस्टली कॉमेडीज दे एंड ऑन they end on a happy note. They're not going to give you tragic note, rather it will be ended on happy note. People will, they will meet each other, they will united and they will be happy. So it is a kind of, if we talk about genre, the genre of this play is comedy. Comedy means that it's going to end on happy note. Play within play. One thing more, if we talk about Midsummer Night Dream, it is having play within play. So there is a play which has been taken dry from the Ovid's Metamorphoses. So there is a work by Ovid, and he has written Metamorphoses. So there are some characters they've been taken, and this play is conducted within the play. So here you will find another play. Shakespeare has conducted another play within play. So when you watch movie, for example, you watch movie Shah Rukh Khan movie and some other actors movie, they are basically producer and director. Sometime whenever they produce movie, they started conducting movie within movie. So movie is going on within movie. आपने बहुत सारे एक्टर्स को देखा होगा, वो मूवी के अंदर मूवी बनाने लग जाते हैं. वो खुद प्रोड्यूसर होते हैं, वो अंदर आते हैं तो उसके अंदर ही एक मूवी बनाने लग जाते हैं.
उसका पूरा प्रोसीजर बताते हैं, ऐसे एक्टर्स इकट्ठे होते हैं, ऐसे कॉस्ट्यूम्स और जो भी चीजें हैं वो उसकी बताते हैं। अर्ली कॉमेडी है इसकी, ये स्पेलिंग थोड़े से रॉन्ग है, मैं ठीक कर देता हूँ। शेक्सपियर की अर्ली अर्ली कॉमेडी में है ये वर्क। और सेटिंग जो है वो ईथन में रखी गई है इसकी, मतलब इसकी सेटिंग जो है वो ईथन ग्रीस की है। उसके बाद लो कॉमिक सीन है इसके अंदर, और स्कॉलर एस्टिमेट द प्ले वाज रिटन राउंड अबाउट 1995, 1595 से 96 के दौरान इसको लिखा गया और लेटर इसको पब्लिश करवाया गया। सो लेट्स सी नो वन बाय वन। इसमें कुछ सीन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ एक्टर्स ने की हैं, जो इसके प्लेयर्स हैं, जो जिसके अंदर एक्टर्स हैं, उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो देखते हैं। द कोर्स ऑफ द ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। लेसेंडर कहता है, जो कि इसका एक प्रोटैगोनिस्ट है इसी प्ले का, लेसेंडर कहता है कि जो कोर्स है लव का वो कभी भी स्मूथ नहीं चलता। मतलब इफ यू लव समबॉडी एंड यू थिंक दैट माय लाइफ विल रन स्मूथ, it will not run smooth. There will be some ups and downs in your life, and you will have to cross all these ups and downs, because certain things they come with certain task. हर चीज का एक अपना टास्क होता है, जब आप उसे परफॉर्म करते हैं उसी तरह जितना बड़ा रिस्क होता है उतनी ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो वो क्या कहता है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। किसने बोला? एक्ट वन में, सीन वन में लेसेंडर जो है, लेसेंडर एक इसका प्रोटैगोनिस्ट है, वो ये डायलॉग बोलता है। लव लुक नॉट विद द आईज, meant to say that what you see through your eyes, you know, your eyes they have link with your neurology. इंसान की जो आईज होती हैं, इनका इनका लिंक होता है बिहाइंड न्यूरोलॉजी के। न्यूरोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसका हमारी आंखों के साथ लिंक होता है। तो कहता है कि यू कांट सी लव थ्रू आईज, लव लुक नॉट विद आईज बट विद द माइंड, एंड देयरफॉर इज विंग कूपर्ड पेंटेड ब्लाइंड। हेलिना एक्ट वन सीन वन, इसके अंदर, इस प्ले के अंदर एक आपको वर्ड, रियल वर्ड दिखाई गई है, एक आपको फेरी लैंड दिखाई गई। मतलब एक ऐसी लैंड है जो फेरी लैंड है, दूसरी परियों की लैंड। ऐसी लैंड है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो भी अपना फंक्शन कर रही होती है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ बैठे हुए हैं इस रूम के अंदर, मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरी 5 सेंसेस से मुझे कोई पता नहीं चल रहा मेरे पास कोई बैठा है या नहीं, क्योंकि मैं अपनी 5 सेंसेस से जो देख रहा हूँ, मैंने अपनी मैप ऑफ वर्ड बनाई है, और आई थिंक दैट देयर इज नो बॉडी एक्सेप्ट मी, जिसको रियलिज्म कहते हैं। अगर मैं रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो रियलिस्ट और रियलिज्म का फलसफा ये कहता है कि जो चीज को आप टच कर सकते हैं, जो रियल है, वही रियलिटी। लेकिन अगर फिक्शनल वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारी चीजें हैं। अब फेरी लैंड ऐसी है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन मे भी उसका वजूद हो, मे नॉट बी, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते। आई मस्ट गो सीक सम ड्यू ड्रॉप्स हेयर एंड हैंग अ पर्ल्स इन एवरी कॉस्लिप्स ईयर। फेरी एक्ट टू और सीन वन में ये डायलॉग है, फेरी ने बोला है। आगे कहता है, आई मिट बाय द मून लाइट एंड प्राउड टाइटेनिया। ये टाइटेनिया और ऑब्रोन्स, ये दो करेक्टर हैं जो कि फेरी लैंड के हुक्मरान हैं। यानी एक लैंड आपको दिखाई जाएगी कि उसमें एक अलग से एक ड्यूक है, लेकिन दूसरी लैंड आपको दिखाई जाएगी जहां पे ओब्रोन जो है उसका राजा है, और टाइटेनिया जो है उसकी क्वीन है, मतलब फेरी क्वीन है। और यहाँ पे हमारे पास एब्रोन है। एब्रोन कौन है? वो उसका किंग है फेरी लैंड का। ये दोनों दोनों साथ साथ चलेंगे प्लॉट्स, हम इसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ करेक्टर लिस्ट है, मैं करेक्टर लिस्ट को डिस्कस करने के बाद इसकी समरी आपको समझाऊंगा, और इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर आप सामने देखें तो बहुत सारे करेक्टर्स। अ मिडसमर नाइट ड्रीम, it's basically about two lands. There are two lands. One land is related to real world where people are living, they are performing their play as well. They are rehearsing, they are making practices, and they want to
perform play. So it is a real word, but along with it we have another word which is a word of jungle, forest. Over there some fairy land, and there are some characters, they are related to fairy lands. Oberon's is the king, and Titania is the queen of this land. Theseus, duke of Ethan, ड्यूक ऑफ ईथन का एक ड्यूक ऑफ ईथन है, उसका नाम है थीसियस। थीसियस ने रिसेंटली एक जंग लड़ी है और उसके अंदर एक ब्यूटीफुल दोशीजा को उसने जीता है, उसका नाम है हिप्पोलिटा। हिप्पोलिटा जो है क्वीन ऑफ अमेज़न है, और इस क्वीन ऑफ अमेज़न को उसने रिसेंटली जीत लिया है एक वार के दौरान। थीसियस ड्यूक है एथन का, और एथन के अंदर एक रिवाज है और एक कस्टम है कि आप जो आपको पेरेंट्स कह देते हैं आपने वही करना। इफ यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट व्हाट पेरेंट्स आर सेइंग यू, देन यू विल बी ईदर किल्ड और यू विल बी ज्वाइनिंग ननरी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई पेरेंट है और उस पेरेंट्स ने अपनी डॉटर से ये कहा है कि आपने फलां से शादी करनी है, जो मैं कह रहा हूं वो आपने वैसे करना है। अगर वो ऐसा नहीं करती लड़की, तो या तो उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी या फिर वो ननरी में चली जाएगी, हमेशा चर्च को दे दी जाएगी और वो आइसोलेट रहेगी, कट के रहेगी। और आजकल की फीमेल या उस वक्त की फीमेल ये पसंद नहीं करती, उनके लिए ये भी मौत है कि उनको कोई देखे ना। हम सबसे ज्यादा सेल्फ प्लीजर से ज्यादा अपने आप या सेल्फ टॉक्स के अलावा हम टॉक्स वी यूजुअली टॉक्स टू अदर, हम अपने आप से कम बातें करते हैं, दूसरों से ज्यादा करते हैं। नहीं तो आप इमेजिन करके देख लीजिए, यानी हम अपने आप से कम बातें करते हैं, जो अपनी स्टोरीज होती हैं अगर बनाई भी हैं हमने बहुत नेगेटिव बना रखी, लोगों की बातें ज्यादा करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने बात की थीसियस करैक्टर की। थीसियस क्या है? हमारा करैक्टर है, एक किंग है, और इसने रिसेंटली अमेज़न की क्वीन हिप्पोलिटा जो कि बड़ी खूबसूरत है, इसको जीता है और इससे शादी करना चाहता है। ही इज टॉकिंग टू हिज क्वीन एंड दे बोथ टॉकिंग टू ईच अदर। जैसे ही वो बातें कर रहे होते हैं तो वहां पे अपीयर होता है हमारा एक और करैक्टर जिसका नाम है ईजियस। ईजियस फादर है हर्मिया का, नोट कर लें, ये हर्मिया का फादर है, और ये अपनी बेटी की कंप्लेन करता है, शिकायत लगाता है थीसियस ड्यूक के, क्योंकि वो ड्यूक की कस्टडी में सारा वो सिस्टम चल रहा है। वो ड्यूक कहता है, वो ड्यूक से अपनी बेटी की कंप्लेन करता है, वो बताता है कि वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है एक डिमिट्रियस नामी एक करैक्टर से। डिमिट्रियस एक बहुत अच्छा लड़का है उसकी नजर में, और वो चाहता है कि अपनी बेटी की शादी कर दे डिमिट्रियस से। लेकिन उसकी बेटी हर्मिया पसंद नहीं करती डिमिट्रियस को, वो पसंद करती है शी इन लव विद लाइसेंडर। तो वो उसे कहता है कि उसकी बेटी उसको फॉलो नहीं कर रही, जो मैं कहता हूं वो नहीं कर रही, तो मैं अपनी बेटी की इस तरह कंप्लेन लेकर आया हूं। वहां पे किंग थीसियस ड्यूक ये ऑर्डर देता है कि तुम्हारी बेटी को या तो मरना होगा तो या ननरी में जाना होगा, यानी हर्मिया को या तो फिर मौत की सजा सुनाई जाएगी या उसे ननरी में जाना होगा। अब ये वो खुद चूज कर ले। एनीवे, ये डिस्कशन चल रही है, यहां से हमारा प्ले स्टार्ट होता है। इसके अलावा एक और करैक्टर है इसके अंदर, उसका नाम है हेलिना, और हेलिना प्यार करती है डिमिट्रियस से, लेकिन डिमिट्रियस इससे प्यार नहीं करता, ये प्यार करता है हर्मिया से, क्योंकि हर्मिया ज्यादा खूबसूरत है और लेसेंडर भी इसी से प्यार करता है। मतलब अब दो करैक्टर हैं जो एक ही लड़की को अप्रोच कर रहे हैं, एक ट्राइएंगल बन गया। यहाँ पे लेसेंडर है और यहाँ पे डिमिट्रियस है और यहाँ पे हमारे पास हर्मिया है। लेकिन इस डिमिट्रियस के पीछे एक लड़की और है जिसका नाम है हेलिना। हेलिना डिमिट्रियस से प्यार करती है, डिमिट्रियस हर्मिया से प्यार करता है, और लेसेंडर भी हर्मिया से प्यार करता है। दो मेल एक ही फीमेल को प्यार करते हैं, और उसके पीछे एक और करैक्टर है फीमेल का जो डिमिट्रियस से प्यार करता है। तो अब इजियस जो कि फादर है हर्मिया का, वो चाहता है कि डिमिट्रियस से शादी हो जाए, क्योंकि वो ज्यादा सक्सेसफुल है, अपने लेसेंडर से ज्यादा सक्सेसफुल है, पैसे वाला है। इतने करैक्टर समझ आ गए। मैंने थीसियस को डिस्कस किया, मैंने जो कि एथन का
एक राजा है और उसके बाद अमेज़न की क्वीन है जिसको उसने रिसेंटली जीता, जिससे वो शादी करना चाहता था। ऊपर से एजियस आ गया, एजियस ने अपनी बेटी की शिकायत लगाई, वो शादी नहीं कर रही डेमेट्रियस से, वो लेसेंडर से प्यार करने लगी है और वहां पे एजियस उसको एक सजा देना चाहता है कि अगर वो फॉलो नहीं करेगी तो या तो उसे ननरी में जाना पड़ेगा या किल कर दी जाएगी। वो हर्मिया को ये ऑप्शन देता है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मेरी और हिप्पोलिटा की, उतनी देर तक तुम्हारे पास टाइम है, सोच लो, अदरवाइज वी विल टेक डिसीजन। यहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी हैं जिनकी एक अपनी लैंड है जो जंगल में अपना वर्क करते हैं, अपने निजाम को चलाते हैं। उसमें उनका जो राजा है उसका नाम है ओबेरॉन, और जो कि फेरीज फेरीज का किंग है। और उसके बाद टाइटेनिया जो है वो टाइटेनिया एक क्वीन है जो कि फेरीज की क्वीन है। और इसके अलावा कुछ रिडिकुलस कैरेक्टर हैं और उनका कुछ गैंग भी है जो बिल्कुल, उनमें जो उनका लीडर है उसका नाम है पीटर क्विंस। पीटर क्विंस जो है इन सारे गैंग का लीडर है जो कि प्ले कंडक्ट कर रहे हैं, और उसमें सारे रिडिकुलस कैरेक्टर हैं, उन्हें फनकारी आती नहीं है, एक्टिंग आती नहीं है और लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं। वो एक ओविड का एक मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड एक प्ले है, वो कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्ले के अंदर एक और प्ले चल रहा है। रोबन गुडफेलो जिसे पक कहते हैं, ये एक मुजीका खेज आप कह लें कि एक फूल करेक्टर है, एक मजाहिया शेक्सपियर का करेक्टर है जिसे पक पक कहा जाता है। इस प्ले के अंदर उसको पक का नाम दिया गया है, इसको कहते हैं रोबन गुडफेलो। ये रोबन गुडफेलो जो है ये इन फेरी लैंड से ही ताल्लुक रखता है, और ये फॉलोवर ये किसका है, सर्वेंट ओब्रॉन का। मतलब ये भी एक सुपर नेचुरल है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मीन रिलेटेड टू स्पिरिट्स, स्पूक्स एंड फेरीज, डॉफ्स, लाइक इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट, गॉड, एंजल्स, स्पिरिट्स, ये सारे सुपर नेचुरल। तो रोबन गुडफेलो और पक जो है ये क्या है, ये मजिशियन है। इसको हुक्म देता है ओब्रॉन, जब टाइटेनिया उसकी अपनी क्वीन उसका कहा नहीं मानती तो वो उसको कहता है कि इसके मुंह में क्या डाल दो, इसकी आंखों में डाल दो वो लव जूस। लव जूस जिसकी आंखों में डाल दिया जाएगा वो उसके सामने जो होगा उससे प्यार करने लग जाएगा। ये इस तरह का लव जूस है। एक और एक बड़ा रिडिकुलस करेक्टर है, एक फूल करेक्टर है जिसे निक कहते हैं। ये एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, ये रियल करेक्टर है, मतलब ये रियल लाइफ से ताल्लुक रखते हैं। ये कौन है, सुपर नेचुरल है, ये वाला, ये और ये सारे। और ये जो निक बॉटम है, ये निक बॉटम और पीटर क्विंस और इसके सारी गैंग, ये सारे रियल करेक्टर। मतलब ये प्ले, और ये प्ले किसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी होगी, दोनों दोनों क्वीन और किंग और क्वीन की, ड्यूक ड्यूक की और शहजादी की, तो हमें वो बहुत ज्यादा इनामो कराम देगा और हमें नवाजेगा इनामात से। तो इसलिए वो उसके लिए बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रही है। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। जो मैंने अभी समझाया इसको अपने लफ्जों में बताइएगा। यस सर। यस, बताइएगा। किंग थीसियस का बताएं, हैपोलिटा का बताएं। कुछ रियल करेक्टर मैंने बताया जो रियल लाइफ से ताल्लुक रखते हैं, जैसे पीटर क्विंस है और उसका गैंग है, निक बॉटम है जो कि एक रिडिकुलस करेक्टर है, एक फूल करेक्टर है। और फिर मैंने रॉबन गुडफेलो जो इसका बड़ा प्रोमिनेंट करेक्टर है, पक पक उसको कहते हैं, वो एक मजिशियन है, एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है। और इस ये किसका है सर्वेंट, ओबरॉन किंग का। ओबरॉन किंग भी एक फेरी क्वीन से सुपर नेचुरल है। और उसके बाद टाइटेनिया उसकी क्वीन है, जिसको जो उसकी जिसको उसका हुक्म नहीं मान रही वो उससे नाराज हो जाता है। मिसाल के तौर पर दो बंदे डिबेट कर रहे, मेल फीमेल, तुम ये करो, वो कहता है तुम ये करो, वो आगे से कहती नहीं करती। तो अब मेल और फीमेल जैसे दो लड़ रहे हैं तो एक एक, एक मन में ख्याल आता है कि यार मैं इसे थोड़ा सा सबक सिखाता हूँ। तो अब वो सबक सिखाने के लिए वो क्या कहता है, वो इसको बुलाता है अपने इस मुलाजिम को, रॉबन गुड फेलो को, पक को, कहता है कि इस तरह का कोई लव जूस लाओ कि ये जो टाइटेनिया है जो मेरी बात नहीं मान रही, इसकी आंखों में डालो और बस ये किसी मजा या किसी ऐसे रेडिकुलस बंदे के पीछे लग जाए। मतलब वो उसको सजा देना चाहता है। अब मैं ये भी बताता हूँ किस वजह से देना चाहता है। मतलब इतने कैरेक्टर्स जो हैं मेरे ख्याल में क्लियर होंगे। अगर आप अपने लफ्जों में बताना चाहती है तो बता दें। यस सर। सर जो इसमें जो थीसिस है ये ड्यूक ऑफ एथेंस है,
और इसमें ये क्वीन जो है ना ये जीती है, क्वीन ऑफ अमेज़न, और ये इससे शादी करना चाहता है। हम्म, और फिर इतने में ये जो ईजीएस का जो फादर, ईजीएस जो फादर ऑफ हर्मिया है ना, ये आता है। ये कहता है कि जो दो लड़के इससे हर्मिया से प्यार करते थे ना, एक तो लेसेंडर होता है और इससे ये भी प्यार करती होती है, और एक दूसरा डिमिटेरियस डिमिटेरियस